Hello friends, my name is Astha and I welcome you all to my YouTube channel JRF Achievers. So today in this video I would like to clarify all your doubts related to lit theory and criticism through the help of few question answers. So ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये नेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे घुमा फिरा के पूछते हैं, बट ऑलमोस्ट हर बार इनसे एक ना दो क्वेश्चन तो 100% आता ही है. इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. Yes, if you have any doubts then you can contact me on Telegram or Instagram. The link is given in the description box. Let's start the video without wasting any time. So the first question is, Philip Sidney wrote an apology for poetry in immediate response to which of the following? So first is Plato's Republic. Second option is Aristotle Poetics. Third option is Stephen Goson's The School of Abuse. And fourth option is Jeremy Collier's Immortality and Profaneness of English Stage. So इस क्वेश्चन का बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जो फिलिप सिडनी का जो एक वर्क है दैट इज़ अपोलॉजी फॉर पोइट्री, वो उसने किसका रिस्पॉन्स दिया था इसके थ्रू, किस पोइट्री को उसने डिफेंड किया था किसके अगेंस्ट. सो द राइट आंसर इज स्टीफन गोसोन्स द स्कूल ऑफ अब्यूज़. सो बेसिकली जो अपोलॉजी फॉर पोइट्री है दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफेंस ऑफ पोएजी which was written by Philip Sidney in 1595 and against Goson pamphlet which is known as the School of Abuse. So स्टीफन ने बेसिकली इस पैम्पलेट में पोइट्री को अब्यूज़ किया है और सिडनी ने अपने वर्क में जो कि है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री उसको डिफेंड किया है, पोइट्री को उसने इस वर्क में डिफेंड किया है. सो ये उसका रिस्पॉन्स था, द स्कूल ऑफ अब्यूज़ का रिस्पॉन्स था के अगेंस्ट. So we can also say that Sidney replied back to Stephen Goson in his work Apology for Poetry. The next question is, the new historicists include option A is Greenblatt, Showalter, Montrose. Option B is Greenblatt, Sinfield, Butler. Option C is Greenblatt, Montrose, Goldberg. And option D is Williams, Greenblatt, Balsay. So basically who are the new historicists from these followings? So the right answer is C, option C, Greenblatt, Montrose and Goldberg. So basically I want to tell you about what is new historicism. So new historicism was developed during 1980s and it basically says that in order to understand a text you need to take non-literary text also within the parallel lines. कि सिर्फ ओनली लिटरेरी टेक्स्ट हेल्प नहीं करता, साथ में आपको बैकग्राउंड नॉन लिटरेरी जो टेक्स्ट है वो साथ के साथ आपको पैरेलली उनको लेकर चलना है. बोथ आर पैरेलल, देर इज़ नो हायरार्की बिटवीन दीज टू. लाइक कि जैसे फॉर एग्जांपल कि लिटरेरी टेक्स्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर कम इम्पोर्टेंट है कंपैरेटिवली टू द बैकग्राउंड. बोथ आर इम्पोर्टेंट, बोथ आर पैरेलल. सो बोथ नीड टू बी गिवन द सेम वैल्यू. And the new historicists include Stephen Greenblatt, Jonathan Goldberg and Louis Montrose. So the option C is correct because in other option like Butler, Judith Butler, she is a feminist. So basically I want to Showalter, she is also a feminist. So these three, Greenblatt, Montrose and Goldberg, these are the three new historicists. So let's go on the further questions. So the third question is, the mad women in the attic is a specific reference to. So option A is the narrator of Goblin Market. Option B is Augusta's Eggs 1858 narrative painting. Option C is the heroine of the yellow paper. And option D is Bertha's Mason of Jane Eyre. सो जो मैड वीमेन इन द एटिक है ये किसके रेफरेंस में लिया गया है इन चारों में से? सो द राइट आंसर इज डी,
Bertha Mason of Jane Eyre. So basically this is a work, Mad Women in the Attic, and this work is written by Sandra and Susan Gilbert, two feminists. Okay, so this title has been taken from Bronte's Jane Eyre कैरेक्टर बर्था मेसन, जो शार्लोट ब्रोंटे का एक वर्क है जेन आयर विच इज़ वेरी फेमस वर्क, और उसमें एक कैरेक्टर है बर्था मेसन हु इज़ द वाइफ ऑफ रोचेस्टर. सो उसका ये जो मैड विमेन इन द एटिक है, ये वहाँ से रेफरेंस लिया गया है. जेन आयर जो शार्लोट ब्रोंटे ने लिखी है, इस वर्क से ये टाइटल लिया गया है. And this work, that is Mad Women in the Attic, it is written by Sandra and Susan Gilbert. Let's go on to the next question. So fourth question is, who among the following is a Canadian critic? Option A, I.A. Richards. Option B, F.R. Lewis. Option C, Kenneth Brooks. Option D, Northrop Frye. सो इनमें से कौन सा कैनेडियन क्रिटिक है बेसिकली? रिचार्ड्स, ल्यूइस, ब्रूक्स या नॉर्थरोप? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉर्थरोप फ्राई. सो बेसिकली ही इज़ अ कैनेडियन क्रिटिक and he belongs to archetypal criticism. Northrop Frye, he belong to archetypal criticism. और जो बाकी के जो तीन हैं, that is I.A. Richards, F.R. Lewis and Kenneth Brooks, they belong to the school of new criticism, and Northrop Frye belong to the archetypal criticism. Next question is, Imagined Communities is a book by Option A, Izaz Ahmed. Option B, Edward Said. Option C, Perry Anderson. Option D, Benedict Anderson. सो इमेजिन कम्युनिटीज़ ये बुक है एक, और ये किसने लिखी है? हु रोट दिस बुक, और हु हैज़ गिवन दिस बुक? सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज बेनेडिक्ट एंडरसन. सो बेसिकली इमेजिन कम्युनिटी, इसमें एंडरसन ने नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, एंड एंडरसन सेज दैट नेशनलिज्म इज समथिंग यू क्रिएट. इट इज़ नॉट समथिंग नेचुरल और मटेरियल, बट रादर समथिंग दैट एग्जिस्ट इन कनेक्शन टू कल्चर एंड साइकोलॉजी. सो इट्स ऑल अबाउट नेशनलिज्म in imagined community. We create nationalism. Sixth question is, the phrase willing suspension of disbelief occurs in which of the following, and by whom, and in which chapter? So basically the phrase willing suspension of disbelief, ये किसने दिया था और कब दिया था और कौन से चैप्टर में दिया था? Option A, Biographia Literaria by Coleridge in chapter 14. Option B, Preface to Lyrical Ballad by Wordsworth chapter 6. And C option is Biographia Literaria by Coleridge chapter 13. And D, In Defense of Poetry by Philip Sidney chapter 14. So the right answer is A, option A, which is Biographia Literaria by Coleridge in chapter 14. So basically this phrase is given by Coleridge in Biographia Literaria. Okay, और chapter 14 में दिया था. Like third option is also same, but उसमें chapter 13 है और first option में chapter 14 है. So chapter 14 is right answer. और वन मोर थिंग, दिस फ्रेज मीन्स कि हम अपने आप को अलाउ करते हैं, लाइक टू अलाउ वन सेल्फ टू बिलीव दैट समथिंग इज़ ट्रू इवन दो इट सीम्स इम्पॉसिबल. जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसको भी हम थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दें कि हाँ ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो इस फ्रेज़ का मतलब यही है कि चीज़ों को जो इम्पॉसिबल है उन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दे, सिर्फ थोड़ा प्लेजर के लिए या फिर अपनी मर्जी से सस्पेंड कर दे कुछ देर के लिए. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड विलिंग सस्पेंशन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रोमांटिक पोएट coined the famous phrase sports of time? Option A,
जॉन कीट्स, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी एस.टी. कोलरिज, ऑप्शन डी लॉर्ड बायरन। सो स्पोर्ट्स ऑफ टाइम इज़ अ फ्रेज, और ये किस रोमांटिक पोएट ने दिया था? So the right answer is William Wordsworth. So William Wordsworth gave this phrase "sports of time," and this phrase is a concept taken from his poem that is Prelude. जो प्रिल्यूड उसकी एक पोएम है और उसका चैप्टर 12 उसमें से ये फ्रेज लिया है, स्पोर्ट्स ऑफ टाइम, दैट मीन्स ब्यूटिफुल मोमेंट्स बेसिकली। Eighth question is the title New Criticism is published by whom and when? So option A is Clint Brooks 1941, option B John Crow Ransom 1947, option C Robert Penn Warren 1942, and option D John Crow Ransom 1941. सो न्यू क्रिटिसिज्म जो ये वर्क है ये किसने पब्लिश किया था और कब किया था? सो द राइट आंसर इज डी, जॉन क्रो रैनसम इन 1941। सो कंफ्यूज मत होना, 1947 और 1941 में से 1941 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमोंग द फॉलोइंग थिंकर कंसेप्ट पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, मतलब सही है? ऑप्शन ए आई ए रिचार्ड्स आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, ऑप्शन बी दैट इज नॉर्थरोप फ्राई मिस्टिसिज्म, ऑप्शन सी जैकिस डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी टेरी इगल्टन साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। सो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? सो द राइट आंसर इज जैकिस डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन। सो डेरिडा इज नोन फॉर डीकंस्ट्रक्शन एज वी ऑल नो। सो और जो ऑप्शंस हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं, ये किस जो ये राइटर्स है या फिर ये जो थिंकर्स है ये किस थ्योरी से रिलेट करते हैं। जो आई आर रिचार्ड्स है दैट इज़ फ्रॉम न्यू क्रिटिसिज्म। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बताया था, आई ए रिचार्ड्स इज़ फ्रॉम न्यू क्रिटिसिज्म। एंड नॉर्थरोप फ्राई, सॉरी ये गलती से क्रिस्टोफर लिख दिया है, बट दैट इज़ नॉर्थरोप फ्राई एंड ही बिलोंग्स टू आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। एंड द टेरी इगल्टन ही बिलोंग्स टू मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। और जैकिस डेरिडा ये सही है, दैट इज़ डीकंस्ट्रक्शन। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। Let's go on the next question. So the next question is who among the following is not a formalist critique? इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब ओड वन आउट। और ऐसे ओड वन आउट वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम में, सो थोड़ा ध्यान से इनको पढ़ें और समझें। ऑप्शन ए एलन टेट, ऑप्शन बी क्लिंट ब्रूक, ऑप्शन सी स्टैनली फिश एंड ऑप्शन डी विलियम्स एम्सन। कौन सा नहीं है फॉर्मलिस्ट क्रिटिक? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्टैनली फिश। सो स्टैनली फिश इज नॉट अ फॉर्मलिस्ट क्रिटिक, सो ही बिलोंग टू रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। ही इज रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक। और जो ये ऑप्शन ए दैट एलन टेट, क्लिंट ब्रूक और विलियम एम्सन, दीज थ्री बिलोंग्स टू द फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म। The next question is Eliot used the term objective correlative in which essay? जो टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, सो जैसे आपका एक क्वेश्चन यहीं पे कवर हो गया कि इलियट ने ये टर्म यूज़ की थी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और लेकिन किस ऐसे में की थी, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए मेटाफिजिकल पोएट्स, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड ऑप्शन डी फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। वन मोर थिंग, जो ये चारों वर्क है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो रिमेंबर दीज 4 वर्क्स, और इनके अंडर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यू हैव टू रिमेंबर दीज। सो इसलिए मैंने इनको ऑप्शन में रखा ताकि आपको साथ के साथ ये भी बता दूँ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन
सो द राइट ऑप्शन बी, दैट इज़ हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स. सो इस ऐसे में उसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का वर्ड का यूज़ किया था. सो बेसिकली दिस टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय अमेरिकन पोएट एंड पेंटर, दैट वॉज वॉशिंगटन एल्स्टन. सो वॉशिंगटन एल्स्टन ने ये टर्म फर्स्ट यूज़ की थी सबसे पहले, और इलियट ने इस वर्क में यूज़ की थी, इस ऐसे में इस टर्म को यूज़ किया था. बट फर्स्ट टाइम इसको एक पेंटर और अमेरिकन पोएट, दैट इज़ वॉशिंगटन एल्स्टन, रिमेंबर दिस नेम, उसने इस टर्म को यूज़ किया था. और इलियट ने इस टर्म को रीडिफाइन किया है. और इस टर्म का मीनिंग है दैट इट बेसिकली मीन्स दैट अ पर्टिकुलर इमोशन फ्रॉम अ रीडर इज इवोक्ड विदाउट एक्चुअली स्टेटिंग व्हाट द इमोशन इज. कि बिना स्टेट करे कि क्या इमोशन है हमारा, रीडर उस इमोशन को इवोक करे लोगों के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैकबेथ. सो मैकबेथ में एक स्लीप वॉकिंग सीन था दैट वॉज परफॉर्म बाय लेडी मैकबेथ. तो उससे यहाँ पे उसके इमोशंस, मतलब उसने डायरेक्टली इमोशंस को स्टेट करने के बजाय शेक्सपियर ने इसे इवेंट्स के थ्रू दिखाया. जैसे स्लीप वॉकिंग सीन के थ्रू उसने इसको दिखाया अपने इमोशंस को, कि वो कितनी डरी हुई थी अंदर से. सो दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जहाँ पे हम डायरेक्टली इमोशंस को स्टेट ना करें, उनको इवेंट्स के थ्रू दिखाएं. So hopefully you got the concept of objective correlative. So let's go on the next question. So the next question is heteroglossia refers to. So this is a term and this term means, इसका क्या मतलब है? So the option A, multiple reading of the text. Option B, the juxtaposition of multiple voice in a text. Option C, the comments on the margins of the text. Option D, the gloss of commentary relating to a text. So इस word या फिर इस term का मतलब क्या है? So the right answer is option B, the juxtaposition of multiple voice in a text. So basically this term is given by Mikhail Bakhtin. हेट्रोग्लोशिया इज़ गिवन बाय मिखेल बख्तिन, और इसने ये टर्म अपने एक वर्क में दी है दैट इज़ नोन एज डिस्कोर्स ऑफ नोवेल. ही यूज दिस टर्म इन हिज वर्क डिस्कोर्स ऑफ नोवेल, एंड दिस टर्म बेसिकली मीन्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कैन ओकर इन अ सिंगल टेक्स्ट. एक सिंगल टेक्स्ट में काफ़ी अलग अलग फॉर्म, जैसे अलग अलग जो पीपल है वो अपने अलग अलग डायलेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं. सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कैन ओकर इन अ सिंगल टेक्स्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following Marxist critics has reconsidered the classic problem of base and superstructure in relation to literature? इनमें से कौन सा मार्क्सिस्ट क्रिटिक है जिसने इस प्रॉब्लम को, जो बेस और सुपर स्ट्रक्चर है, इस रिलेशन को दोबारा रिकंसिडर किया है? ऑप्शन ए, एडमंड विल्सन. ऑप्शन बी, रेमंड विलियम्स. ऑप्शन सी, लुशियन गोल्डमैन. ऑप्शन डी, वोल्टर बेंजामिन. सो बेसिकली जो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर है, दिस इज़ गिवन इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, जो कि फ्रेडरिच एंजल और कार्ल मार्क्स ने स्टार्टिंग में इसका आइडिया दिया था. सो इस प्रॉब्लम को, जो क्लासिक प्रॉब्लम है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की, इसको रिकंसिडर किसने किया था? सो द राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी, रेमंड विलियम्स. ही रिकंसिडर्ड द क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर. So the next question is, the term ecological imperialism was coined by? Option A, Vandana Shiva. Option B, Lawrence Boyle. Option C, Paulo Freire. Option D, Alfred Crosby. जो ये टर्म है इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म, ये किसने कोइन की थी? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एल्फ्रेड क्रॉसबी. So this term is given by Alfred Crosby in his work that is Ecological Imperialism: Biological Expansion of Europe. ये इस वर्क में उसने इस टर्म का डिफाइन किया था, या ये टर्म दी थी, कोइन की थी इस टर्म को,
किसने? एल्फ्रेड क्रोस्बी. रिमेंबर दिस टर्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसका मतलब है व्हेन यू यूज प्लांट्स, एनिमल्स और सम डिजीज टू कोलोनाइज और टू शिफ्ट इन इकोलॉजी ऑफ कोलोनाइज्ड एरिया. किसी की इकोलॉजी में या फिर मतलब बेसिकली कोलोनाइज करने में हेल्प करता है. जैसे फॉर एग्जांपल पैथोजन दैट वर डिजीज़ कोजिंग, ये इंट्रोड्यूस किए गए थे अफ्रीका में और अमेरिका में बाय यूरोपियंस. क्यों? टू कोलोनाइज द अफ्रीकन्स. So basically it is easy for other country to control the area by use of ecological things like plants, animal, disease. So imperialism, the terms define कि हाँ colonize करना, किसी और country के ऊपर अपना domination दिखाना. तो ये ecological imperialism that is given by Alfred Crosby. Last question of today's video is find the odd among the following. So option A, George Lucas. Option B, Louis Althusser. Option C, Raymond Williams. And option D, Northrop Frye. इनमें से कौन सा अलग है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है, काफ़ी बार इनसे पूछ लेते हैं बिकॉज दीज क्वेश्चन आर मच कन्फ्यूजिंग. सो द राइट आंसर इज Northrop Frye. Why? The reason is because he is a archetypal critic और कैनेडियन क्रिटिक आई कैन से. और जो ये बाकी के तीन हैं दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ मार्क्सिज्म. जैसे जॉर्ज लुकास हुआ, लुइस एल्थूजर हुआ, रेमंड विलियम्स हुआ, ये मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म की क्लास को बिलोंग करते हैं. बट नॉर्थरोप फ्राई बिलोंग टू आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म. So hopefully the video gives you a lot of information. So thank you everyone. And yes, if you still have any doubts, you can go to the description box and can contact me through Telegram or Instagram. And yes, if you like this video, then please like, subscribe my channel, and also stay tuned to my channel for further informative videos. Thank you.